Hello and welcome to my platform, my channel Knowledge and Solution. And today I wanna go to talk about being a solution architect, your life. Being a solution architect, what is your life and what will be your life and your thought process being a solution architect. How you are going to resolve the problem and how you are going to prepare yourself for interview, for evaluation as a solution architect. So let's get started without wasting our time. So whatever I am speaking here, it is all based of my experiences and knowledge. This is, my dear friend, this platform is knowledge and solution. So I have 19 years of experiences across vertical, across tools and technology. I worked as a solution architect, worked at a worked as a technical project manager where I involve in tools and technology and also designing solution, planning along with tech lead and developers and different stakeholder. So today I wanna go to talk and deep dive about being a solution architect, your preparation and role and responsibility being a solution architect. Rule number one, being a solution architect. If you are going to start your career as a solution architect, if you wanted to be a good solution architect, rule number one, always listen your stakeholder, business people, especially business people, business manager, business relationship manager, client partner, and those who are paying to you, those who are paying for the solution, those who are searching for solution for their business, for enhancement of the business, for generating more leads, more revenue. Rule number one, always listen them carefully. Always listen and try to understand. Listening means always not listening in the layman statement, but try to understand, try to feel why they need solution, why they need you as a solution architect. And this is not something like you as a solution architect, might be someone else, but why they need a solution, because they have a problem, they have a legitimate problem, they have a valid problem. If there are problem, there are solution. If there are no problem, there are no solution. So this is the rule number one. Rule number two, always ready to adapt and digest new situation, new tools and technology, new things, whatever come to your bucket, whatever come to your knowledge, your consideration and your areas. Try to adapt, digest and learn. Learning is the key features as a solution architect. Rule number two I am discussing nowadays. I mean, adapt and digest means, if somebody is saying that why not build versus buy, why not build, why not we are building something, why we are buying, why platform as a service, why not infrastructure as a service, why cloud solution, why not non cloud solution, why AI, why not gen AI. So your thought process, you should be visionary enough. Your vision is okay, okay, that's fine, okay, I will try, okay. And always adapt the new things, new challenges, new tools and technology. If you are working with the logic app, function app, why not push mechanism, why not this, why not that. So you should be very soft enough to get new things, adaptable nature. You should be in a adaptable situation. You should not be very arrogant, you should not be very um, what I can say, arrogant and negative attitude person. Always be positive, okay. If you are responding someone else, responding in a very friendly and friendly and softness. Hey, we are not using this because of, this is the situation. हम यहाँ पे ये चीज़ें यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका कारण ये है, इसीलिए हम यूज नहीं कर रहे हैं। और ये आपका सजेशन वांछनीय है, आपका सजेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, और हम इसको आगे भी करेंगे. So that kind of mindset is going to helpful for you as a solution architect. You should not be adamant, you should not be negative attitude person.
always come with a positive mindset, come with a collaboration. Okay, co-working and collaboration is required being a solution architect. Rule number 3 is very important part. Being a solution architect, whatever system, whatever legacy system, legacy application, web application, anything else, uh, people about to start the conversation, about to start this discussion, then take your time, study each and every component, the downstream system, the upstream system, the external party vendors, how system is interacting to each other, what are the present existing integration is altogether there, the current situation, that known as is the system, the present system, present solution, present architecture. Deep dive, take your time, take a notepad or diary or anything else where you can write, you can correlate something, illustration diagram and something, why this is happening like this, oh this is the situation, yeah. So यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, दिस इज़ द प्रॉब्लम, यहाँ पे ये किया हुआ है, यहाँ पे ये अगर हो जाए तो ये प्रॉब्लम हमारा दूर हो सकता है। तो इस तरह के चीज़ों को आपको एक डायरी में, या आप वीजियो, एमएस वीजियो का भी यूज कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा चीज़ जो आप यूज कर सकते हैं उसको यूज कीजिए, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। एक अच्छा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वही होता है जो प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रहा है उसको अच्छे से स्टडी करे और उसको लिंक करे और को रिलेट करे कि यार यहाँ पे पाइथन यूज किया गया है और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो क्यों ना हम पाइथन को और रोबस्ट बनाएं। कुछ पुराने चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेट किया जा सकता था जो कि नहीं हुआ है, तो क्या हम किसी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को बना के उसके उसके सर्विस को बना के उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते क्या, या एपीआई बना दें या एपीआई को कंज्यूम कर लें। तो आप कुछ कम बजट में भी आप सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। इट इज़ नॉट कि ये हटा दो वो हटा दो ये हटा दो हटा दो, और जल्दीबाजी में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कभी डिसीजन नहीं लेता, जल्दीबाजी में और पैनिक सिचुएशन में और जल्दीबाजी में, किसी के दबाव में भी नहीं। नो 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 नो, नो प्रेशर, नो प्रेशर, नो प्रेशर एट ऑल। लिबरल होना ज़रूरी है, क्योंकि जल्दीबाजी में अगर प्रेशर में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कोई भी डिसीजन ले लेता है, किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में, यार मैं कह रहा हूँ ना कर दो, ठीक है कर दो, बट वेल प्रूफ ईमेल होना चाहिए आपके पास, कंसेंट होना चाहिए। कोई भी चीज़ नया अगर डिसीजन आप मेकिंग कर रहे हो तो साइन ऑफ होना चाहिए, साइन ऑफ प्रूफ अटैच होना चाहिए। बीइंग ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आप लोग भूल जाते हो, कीप इन माइंड, कोई भी नया सॉल्यूशन, कुछ भी नया अगर आप डिसीजन, सॉरी नया अगर कोई भी चीज़ आपने डिसीजन लेना है तो सबसे पहले यू हैव वेल प्रूफ सिग्नेचरी और साइन ऑफ फ्रॉम हायर अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। ओके, last but not the least, the fourth rule, number fourth is, you should be a student in your life. जैसे हमेशा लर्निंग के लिए तैयार रहो। थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है, कब तक पढ़ें, क्या करेंगे, ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो, आप लर्निंग करोगे तो आप सिक्योर रहोगे, आपकी जॉब सिक्योर रहेगी, आप बने रहोगे मार्केट में, आपके पास नॉलेज जो होता है, नॉलेज ज्ञान, ये ज्ञान बहुत बड़ा चीज़ है। अगर हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा अच्छा नॉलेज, बेस नॉलेज हो जाए तो आपको जॉब स्विच करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी से डर नहीं लगेगी। इसका मतलब ये नहीं हो किसी के सर पर बैठ जाना, किसी को कुछ बोल देना, नो। पहले तो एक अच्छा इंसान, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए आपका। लर्निंग इज़ द की इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर ईच एंड एवरी आईटी प्रोफेशनल नाउ एडेज माय डियर फ्रेंड, चाहे आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो, कोई भी हो। बट आज हम इसकी जो चर्चा कर रहे हैं वो एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि लर्निंग जो होता है, एक स्टूडेंट का माइंडसेट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर नए चीज़ों को लर्न करने का भूख होना चाहिए। वो भूख कब होगा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे। मैं जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, कि आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आपके अंदर ऊर्जा रहेगा, और ऊर्जावान रहेंगे तो आप स्टडी भी कर सकते हैं, नए चीज़ों को अडाप्ट भी कर सकते हैं।
और निगेटिव माइंडसेट के लोगों के साथ उठना बैठना कम कर दीजिए, क्योंकि जो निगेटिव लोग होते हैं सिर्फ निगेटिव बोलते हैं। ये जो हमारा सोच है ना, दिमागी सोच, जो हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अकेला इंसान हमेशा मजबूत होता है। अकेला चलना सीखो। देखो इधर देखो, अकेला चलना सीखो। जो आप कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, और उस पर कॉन्फिडेंस रखो। देखो, फेल और पास ये दोनों लाइफ का पार्ट है। सोल्यूशन आर्किटेक्ट, चंद्रयान का भी अभी देखा होगा, कुछ दिन पहले हम लोग लॉन्च नहीं कर पाए इंडिया, लेकिन दोबारा लॉन्च हुआ तो पहले वो उनकी आंख में आंसू आ गए थे, राइट। तो आप डरो मत, और आप 10 लोगों से राय मत मांगो कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या ये हो जाएगा, क्या वो हो जाएगा। सो इस कंफ्यूजिंग माइंडसेट से आगे निकलने की ज़रूरत है। सोल्यूशन आर्किटेक्ट की दुनिया में अगर आप जा रहे हो तो, और जब सोल्यूशन बढ़िया देने लगोगे, काम अच्छा करने लगोगे, तो आप स्विच भी कर सकते हो, दूसरे एरिया में भी जा सकते हो। सो एक अच्छा करियर है, और इस सोल्यूशन आर्किटेक्ट को एआई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ही डिसाइड करता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, जेन आई यूज करेंगे, ए आई यूज करेंगे, पाइथन। अरे जब सब काम हम पाइथन से, पर्ल से और डॉट नेट से ले रहे हैं, और कम बजट में ले रहे हैं, चीज़ें सही चल रही हैं, आने वाले 2 साल तक मुझे ए आई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं तो पैसा भी बचा रहा हूँ ना, और ह्यूमन रिसोर्स को भी बचा रहा हूँ कि हमारे जो डेवलपर हैं उनकी जॉब ना जाए। तो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप यूज करो, नई चीज़ें यूज करो। एआई तो बहुत अच्छा चीज़ है, उसको यूज करो, अडाप्ट करो। अगर ज़रूरत पड़ी तो, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा मैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज करो, ठीक है। और धीरे धीरे चीज़ों को चेंज करो। आप ड्रेस्टिकली और जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लो। नो नो, दिस इज़ नॉट फेयर प्रैक्टिस, ठीक है। और दुनिया के लोग क्या कहेंगे, किसको क्या कहना है, कहने दीजिए, उनसे मतलब नहीं है। आप अच्छे हैं, अगर आपका मोटो अच्छा है और आपके साथ 1 या 2 बिजनेस के लोग खड़े हैं, तो आप आगे निकल सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो मैंने 4 रूल बताए हैं, उसमें से अगर 2 भी रूल या 3 भी रूल आपके ऊपर लागू हो रहा है, और अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, मित्रों से। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अन्य दूसरे अपडेट्स मिलते रहेंगे, और नॉलेज भी मिलता रहेगा। चलिए, अलविदा, मिलता हूँ फिर।